Bhakti Vighna Swami, Srila Prabhupada ki, Vishwan Bangaracharya, Srila Prabhupada ki, Nitya Lila Pradishta Om Vishnu Pad, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, Srila Prabhupada ki, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki, Namacharya Srila Haridas Thakur ki, Prem Shri Gaur Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavinda ki, Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyam Kund Radha Kund ki, Govardhan ki, Vrindavan Maya Pradam ki, Ganga Maya Yamuna Maya ki, Tulsi Maharani Bhakti Devi ki, Pani Hatti Dhyam ki. Oh, glories assembled devotees, oh, glories assembled devotees, oh, glories assembled devotees. Oh, glory Shri Guru Shri Gauranga, oh, glory Srila Prabhupada. Namo Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Srimati Bhakti Vighna Swami. Namaste Saraswati Devi, Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunyavadi, Jatadesha. हरे कृष्णा डिवोटीज थोड़ा आगे सभी डिवोटीज थोड़ा और आगे तिवारी प्रसाद खाया महाराज दूसरे प्रसाद खाया So Lord Chaitanya comes here to take prasadam also. श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आते हैं वो भी यहाँ पर आकर प्रसाद ग्रहण करते हैं Lord Chaitanya comes in his Abhirbhav form. श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर अपने आविर्भाव के रूप में आते हैं There are just a few places where Lord Chaitanya would manifest himself. कुछ ही ऐसे स्थान थे जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को प्रकट किया Just like in Mother Sachi's home, Lord Chaitanya would come every day to eat the prasad cooked by Mother Sachi. जैसे कि सची माता के आंगन में चैतन्य महाप्रभु रोज आते थे जो सची माता प्रसाद बनाती थी उसको ग्रहण करने के लिए And wherever Lord Nityananda danced in the kirtan, Chaitanya Mahaprabhu would come. और जहाँ पर श्री नित्यानंद प्रभु नृत्य करते हैं कीर्तन में वहाँ पर भी चैतन्य महाप्रभु हमेशा रहते हैं But he would also come here in PANI HATTI because he would come to the home of Raghava Pandit and his sister Damayanti would come here to eat their prasad. और लेकिन यहाँ पर भी श्री चैतन्य महाप्रभु हमेशा आते थे श्री राघव पंडित के घर पर और उनकी बहन दमयंती जी के यहाँ पर जो कि प्रसाद बनाते थे और चैतन्य महाप्रभु उसको स्वीकार करते थे Just 1 minute's walk away from here is the house of Raghava Pandit, where Raghava Pandit and his sister Damayanti live. तो यहाँ से केवल 1 मिनट की दूरी पर राघव पंडित जी का घर है जहाँ पर राघव पंडित जी और उनकी बहन दमयंती वो रहते थे And Raghava Pandit and his sister Damayanti every year they go to Jagannath Puri for the Rath Yatra. और राघव पंडित और दमयंती हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा के समय पुरी जाते थे And they would bring a big sack, Raghava Jeli. They would bring this big sack full of all different preparations which they cooked for Lord Chaitanya Mahaprabhu. और हर साल जब वो पुरी जाते थे तो एक बहुत बड़ा झोली राघवेर झोली उसको अलग अलग तरह के व्यंजनों को बनाकर उसमें वो झोली भरकर वो लेकर के जाते थे चैतन्य महाप्रभु के लिए They were such expert cooks. Whatever they cooked, it would stay perfectly fresh. Even though they cooked it months ago, they would be able to bring it to Puri, and Lord Chaitanya would keep it there, and when he felt like it, he could eat it. तो राघव पंडित और उनकी बहन दमयंती वो इतने दक्ष थे प्रसाद बनाने में कि जो वो प्रसाद बनाते थे वो काफी लंबे समय तक वो एकदम फ्रेश रहता था कई महीनों के बाद भी वो प्रसाद सही रहता था और चैतन्य महाप्रभु को जाकर भेंट करते थे और चैतन्य महाप्रभु को जब इच्छा होती थी तो वो उसमें से प्रसाद ग्रहण करते थे And they would cook so many things. They have sacks of this stuff. They carry sacks of preparations. और वो इतने सारे अलग अलग तरह के आइटम बनाते थे तो जैसे प्रसाद के बोरे भर भर के वो लेकर के जाते थे कई सारे So they were such wonderful devotees. Chaitanya Mahaprabhu would come in
appear, and from unmanifested, he would just suddenly appear in the home of Raghava Pandit and take prasad. तो राघव पंडित और उनकी बहन इतने महान भक्त थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु अपने अप्रकट लीला से कभी-कभी तुरंत प्रकट हो जाते थे और उनके घर पर प्रसाद ग्रहण करते थे. And only 30 seconds walk away from here is a place where Lord Nityananda came and gave mercy to Raghunath Goswami. और यहाँ से केवल 30 सेकंड की दूरी पे वो स्थान है जहाँ पर श्री नित्यानंद प्रभु आए थे और वहाँ पर उन्होंने श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी जी को कृपा किया था. So Raghunath Das was born in a very wealthy family. His father and his uncle Aranya and Govardhan Majumdar were very wealthy, and they were maintaining all the brahmanas in Bengal. तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी एक बहुत धनी परिवार में पैदा हुए थे और उनके पिता और उनके अंकल हिरण्या और गोवर्धन ये दोनों बहुत धनी थे और वो सभी ब्राह्मणों को बहुत सेवा किया करते थे. So Raghunath was born in that kind of family. They were not brahmanas, but they were very wealthy people. तो रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसे परिवार में प्रकट हुए थे. वो लोग ब्राह्मण नहीं थे लेकिन बहुत धनी व्यक्ति थे. Rupa and Sanatan and Raghunath Bhatta and Gopal Bhatta, they were all brahmanas. तो शिला रूप गोस्वामी, शिला सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट ये सभी जो है ब्राह्मण थे. But Raghunath Das, he's also one of the 6 Goswamis. He was not born in a Brahmana family. लेकिन शिला रघुनाथ दास गोस्वामी वो भी 6 गोस्वामियों में से एक थे लेकिन वो ब्राह्मण परिवार में जन्म नहीं लिए थे. But he was a very, very great devotee. लेकिन वो एक बहुत बहुत महान भक्त थे. So as a young man, he was attracted to join Lord Chaitanya's Hare Krishna movement. तो एक युवा के रूप में रघुनाथ दास गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन से बहुत आकर्षित हुए. So his parents saw that, oh, our son, he doesn't want to stay at home. He wants to become a sadhu. तो उनके माता पिता ने देखा कि हमारा पुत्र रघुनाथ वो घर पे नहीं रहना चाहता है, वो एक साधु बनना चाहते हैं. So they got him married to one of these very nice, attractive Bengali girls. तो उन्होंने रघुनाथ दास जी का एक बहुत सुंदर और आकर्षित करने वाली बंगाली लड़की से उनका विवाह कर दिया. Very beautiful girl. बहुत खूबसूरत थी. And she spoke so nicely. She was very gentle. She didn't speak harsh words. और वो बहुत मधुर वाणी में बोलती थी और कभी भी खराब तरीके से नहीं बोलती थी. बहुत ही अच्छी जेंटल व्यक्ति थी माता जी. You know, you could hardly hope to get such a good wife today. आज के समय में ऐसी पत्नी मिलना बहुत मुश्किल है. So Raghunath Das, still, although he had such a nice wife and he had so much money, he didn't want to stay. He wanted to go. तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी हालांकि उनकी इतनी अच्छी पत्नी थी और इतने धनी परिवार से थे लेकिन फिर भी रघुनाथ दास गोस्वामी घर पे नहीं रहना चाहते थे, वो जाना चाहते थे. They were thinking to tie him up, but they thought, what is the good of ropes? तो वो सोच रहे थे कि इनको रस्सों से बांध दिया जाए लेकिन उन्होंने सोचा कि इनको रस्सी से भी कैसे बांधे. He has more wealth. He has wealth like Kubera, the treasurer of the demigods. And he has a wife as beautiful as Lakshmi, the goddess of fortune. And he doesn't want to stay at home. What good will ropes be? तो उन्होंने जब ये सोचा कि इनको रस्सी से बांधा जाए तो फिर उन्होंने सोचा कि इनके पास इतना धन है जो कि कुबेर के समान है और जो इनकी पत्नी है वो इतनी अच्छी है जो कि लक्ष्मी जी की तरह है और फिर ये भी अगर उनको नहीं बांध पा रहे तो रस्सी से कैसे बांधेंगे. So it happened that Chaitanya Mahaprabhu came to the area where Raghunath Das was living, and Raghunath went to see Lord Chaitanya Mahaprabhu, and he begged Lord Chaitanya Mahaprabhu, I want to come with you, I want to join, I want to come and stay with you, I don't want to be at home. तो एक बार ऐसा हुआ कि श्री चैतन्य महाप्रभु उस क्षेत्र में आए जहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी रहते थे और रघुनाथ दास गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने गए और जब मिले तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को कहा
कि मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, मैं घर पे नहीं रहना चाहता। But Lord Chaitanya Mahaprabhu told him, don't be a sahajya. Don't take everything so cheaply. Behave like a normal person. Go home and keep Krishna in your heart. तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला कि आपको सहजिया बनने की जरूरत नहीं है, एक साधारण व्यक्ति की तरह ही व्यवहार करो, अपने घर पे जाओ और कृष्ण को अपने हृदय में ग्रहण करो। Sometimes people come to Krishna consciousness and sometimes they bring their sahajaism with them into Krishna consciousness. कई बार लोग इस कृष्ण भावनामृत संस्था में आते हैं और साथ में अपना जो सहजिया उनका जो भाव है वो साथ में लेकर आते हैं। They think, oh, it's very easy to be a devotee. Anyone can surrender to Krishna. और उनको लगता है कि भक्त बनना बहुत आसान है, कोई भी व्यक्ति जो है वो भगवान को शरणागति कर सकता है। But Lord Chaitanya Mahaprabhu was pointing Raghunath that you don't need to come with me to be a devotee. You can stay at home and make advancement. तो श्री चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को ऐसा शिक्षा दी कि उनको उनके साथ चैतन्य महाप्रभु के साथ जाने की जरूरत नहीं है भक्त बनने के लिए, वो घर पे भी रह सकते हैं और वहाँ पे भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। Chaitanya Mahaprabhu didn't like to change people, to bring people out from their situation. He liked them to stay in whatever situation they're in and become Krishna conscious. तो श्री चैतन्य महाप्रभु ये नहीं चाहते थे कि लोग जिस स्थिति में रह रहे हैं उसमें कुछ बदलाव करें और आए। चैतन्य महाप्रभु चाहते थे जिस स्थिति में भी वो भी रहते हैं वहाँ पे रहते हुए वो कृष्ण भावना भावित हों। And similar today with our Krishna consciousness movement, you know, we don't encourage people to abruptly come and join up and become full-time devotees. तो इसी तरह से हम भी आज ये कृष्ण भावनामृत संघ में हम ऐसा लोगों को नहीं कहते कि एकदम से सब कुछ छोड़ छाड़ के आप एकदम यहाँ पर आकर फुल टाइम ब्रह्मचारी बन जाओ। Rather, we encourage them, you continue doing what you're doing. Maybe you're a student, or maybe you have a job. You continue in that situation, and at the same time come to temple and chant and follow the principles. तो हालांकि इसके विपरीत हम उनको ये बोलते हैं कि वो जिस भी स्थिति में है उसी स्थिति में वो बने रहें, चाहे जैसे कि वो विद्यार्थी हैं तो अच्छे से विद्या अर्जन करें, वो अगर व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं तो उसमें बने रहें और साथ में वो कृष्ण के शरण में आए, यहाँ पे आते रहें। So Chaitanya Mahaprabhu told Raghunath, you go home, behave like a normal person. So श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को निर्देश दिया कि आप घर जाइए और एक साधारण व्यक्ति की तरह ही बनकर रहिए। So Raghunath went home. He followed the instructions of Chaitanya Mahaprabhu. और चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा का पालन करते हुए रघुनाथ दास गोस्वामी अपने घर लौट गए। And he went home and he behaved like a very good son. His parents were very happy with him. They thought, oh, our son is changed. He's a very good boy now. तो जब रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु से ऐसा शिक्षा लेकर घर पे गए तो उनके माता पिता देखकर बहुत खुश हो गए, बोले हमारा बेटा अच्छा हो गया है, ये बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहा है। Previously, he was always running away from home, and they'd have to send men to catch him and bring him back. पहले जो है वो बार-बार घर से भाग जाते थे, हमें पीछे आदमियों को भेजकर उनको पकड़वाना पड़ता था बार-बार। But now he seems to be settled in the home. Although he's not very intimate with his young wife, but still he's behaving very nicely in the house. तो उनको ऐसा लग रहा था कि रघुनाथ दास गोस्वामी अब घर में बहुत संतुष्ट हैं, हालांकि अपनी जो पत्नी हैं उनसे वो बहुत घनिष्ठता से व्यवहार नहीं करते, लेकिन फिर भी वो घर में सेटल हो गए एक तरह से। So after some time it happened that news came that Lord Nityananda has come to PANI HATTI with all of his associates. और कुछ समय बाद ऐसा सूचना आया कि भगवान श्री नित्यानंद प्रभु पानी हाटी में अपने कई सारे पार्षदों के साथ आते हैं। Lord Nityananda traveled with 12 gopas,
cowherd boys. They were all from Krishna Lila, and they come to take part in Mahaprabhu's pastimes. And they were with Lord Nityananda. तो श्री नित्यानंद प्रभु 12 गोपा सखाओं के साथ में वो भ्रमण करते थे। ये 12 गोप सखा जो है कृष्ण लीला में जो भगवान के गोप सखा है वो हैं, और वो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में भाग लेने के लिए प्रकट हुए थे और नित्यानंद प्रभु के साथ में भ्रमण कर रहे थे। So PANI HATTI was one of the places in which Lord Nityananda came here with all of his associates, and they were having nice kirtan. और पानी हाथी वो एक स्थान है जहाँ पर श्री नित्यानंद प्रभु आए और अपने सभी पार्षदों के साथ यहाँ पर आए और खूब हरिनाम कीर्तन हुआ। And of course Raghava Pandit's house is nearby. You know you're going to get some good prasadam. और राघव पंडित जी का घर भी पास में है, तो पता है कि अच्छा प्रसाद जरूर मिलेगा यहाँ पर। If you know there's good prasadam somewhere, definitely you'll go there to that place. जब आपको पता चल जाता है कहीं पे अच्छा प्रसाद है तो जरूर वहाँ जाते हैं हम लोग। So Lord Nityananda and all his associates were here, and Raghunath, he approached his parents and he asked them, could I go to PANI HATTI to see Lord Nityananda? तो श्री नित्यानंद प्रभु यहाँ पर पानी हाटी में थे और रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने अपने माता पिता से आज्ञा मांगी कि क्या मैं नित्यानंद प्रभु से मिलने पानी हाटी जा सकता हूँ। And so his parents, all right, why not? You're a good boy, you can go. तो उनके माता पिता ने कहा हाँ क्यों नहीं, आप अच्छे बच्चे हो, आप बिल्कुल जा सकते हो। So Raghunath came here to PANI HATTI, and when Raghunath came, then they informed Lord Nityananda that Raghunath is here, the son of Haranya Govardhan Majumdar. He's come. And so Lord Nityananda said, bring him to me. तो इस तरह से रघुनाथ दास गोस्वामी यहाँ पर आए, और जब वहाँ पर आए तो जो नित्यानंद प्रभु के पार्षद थे भक्त, उन्होंने बताया नित्यानंद प्रभु को यहाँ पे रघुनाथ दास गोस्वामी आ गए हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने बताया कि उनको बुलाइए, मेरे सामने लाइए। You can see just there, just a few yards away from this building, there's a tree right on the bank of the Ganges, and it was Lord Nityananda was sitting under that tree, and Raghunath came and offered his full dandavats. तो यहाँ से कुछ ही दूरी पे बिल्कुल नजदीक में आप देख सकते हैं कि गंगा जी के तट पर वो पेड़ है, बहुत बड़ा एक पेड़ है जहाँ पर जिसके नीचे नित्यानंद प्रभु बैठे थे और जहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी उनसे आकर मिले थे। It's a very holy place, very special place. वो एक बहुत ही दिव्य स्थान है, बहुत ही विशेष है। For those of us in the Gaudiya Vaishnava Sampradaya, very important place. तो हम लोग जो कि गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में हैं, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और दिव्य स्थान है। And so Lord Nityananda came, Raghunath came to Lord Nityananda and offered his full obeisances, and Lord Nityananda said to him, today I am going to punish you. तो रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद प्रभु जी के सामने आए और उन्होंने पूरी तरह से दंडवत प्रणाम किया, और नित्यानंद प्रभु ने उनको देखते हुए बोला कि आज मैं आपको पनिशमेंट दूंगा। And the punishment is you have to put on a festival for all the devotees. और आपका दंड ये है कि आपको सारे भक्तों के लिए यहाँ एक बहुत बड़ा फेस्टिवल का जो है व्यवस्था करना है। So this happened in the very hot season, just before the rains start. It's very humid, very hot. तो ये लीला हुई थी उस समय जब बहुत गर्मी का मौसम था और ये बारिशों से पहले बहुत ह्यूमिड और बहुत गर्म उस समय। Delhi is very dry, but here very humid. तो दिल्ली में बहुत ड्राइनेस है, यहाँ पे ह्यूमिड है सारा वातावरण। So there was not a lot of things available in the market 500 years ago. तो 500 साल पहले ऐसा नहीं था, मार्केट में बहुत कुछ चीजें नहीं मिलती थी। But Lord Nityananda arranged to buy up all the flat rice, the shira. तो लेकिन नित्यानंद प्रभु जी ने जितना भी यहाँ पर चिवड़ा जो उपलब्ध था वो सारा व्यवस्था कर ली इसको लाने की। Right? In the summer, it's in this very hot weather, it's very cooling to take
flat rice mixed with dahi. तो ऐसे तेज गर्मी के मौसम में बहुत अच्छा अनुभव होता है, बहुत ठंडा महसूस होता है जब चूड़ा को दही के साथ में मिलाकर लिया जाए. So Raghunath arranged, he got a lot of big clay pots, filled them with Ganga water from the Ganges, right at the side, and washed the flat rice in the Ganga water. तो श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने बड़े बड़े मिट्टी के जो बर्तनों का व्यवस्था किया और उसके अंदर गंगा जी का जल भरा और जो चूड़ा था उसको गंगा जी के जल में धोया. And then he got all the yogurt and there was some condensed milk and he mixed the flat rice with yogurt and condensed milk. तो वहाँ पर और कुछ दही था तो उस चूड़ा में दही को मिलाया गया और गाढ़ा दूध था उसको भी उसमें मिलाया गया. And this time, at that time of the year, very hot mangoes were there. So he got a lot of mangoes and they had mango juice there in the shira dahi. And then they got, of course, bananas. There's always a lot of bananas here. तो उस समय बहुत गर्मी का मौसम था, आम का मौसम था, तो बहुत सारे आम लाए गए और उस आम को भी उसमें निचोड़ दिया गया, उसका जूस निकालकर. और केले तो हमेशा यहाँ पर बहुत होते हैं तो केले भी डाल दिए गए. So Lord Raghunath offered all of these things. They make nice shira dahi mixed with mango and bananas and condensed milk. They offered everything to Lord Nityananda. तो इस तरह से रघुनाथ दास गोस्वामी ने बहुत सुंदर आम और केला और गाढ़ा दूध युक्त शीरा दही बनाया और नित्यानंद प्रभु को उसको अर्पित किया. At that time, when they were offering to Lord Nityananda, at that time Lord Chaitanya also manifested. तो इस तरह जब वो श्री नित्यानंद प्रभु को अर्पण कर रहे थे बना हुआ भोग, उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु भी यहाँ पर प्रकट हो गए. Wherever Lord Nityananda dances, Lord Chaitanya will come. तो जहाँ पर भी नित्यानंद प्रभु नृत्य करते हैं वहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो जाते हैं. So Lord Nityananda was so happy, he saw the nice festival, he was dancing. Chaitanya Mahaprabhu also came. तो श्री नित्यानंद प्रभु बहुत खुश थे, इतना सुंदर यहाँ पे त्योहार हो रहा था, नित्यानंद प्रभु नृत्य कर रहे थे और श्री चैतन्य महाप्रभु भी यहाँ पर आ गए. And Raghunath was purchasing all the bananas and all the mango and all the different vendors were coming from even other villages. They were all coming, bringing, buy mine, buy mine. तो रघुनाथ दास गोस्वामी जितने भी ठेले आ रहे थे केलों के, आम के, सब खरीदते जा रहे थे और आसपास के गांवों से भी लोग ठेले भर भर के आ रहे थे और कह रहे थे कि मेरा खरीदो, मेरा लो, मेरा लो. And in this way, they had a big feast, a big festival. Everyone was fed shiradahi. और इस तरह से यहाँ एक बहुत बड़ा फीस्ट हुआ, बहुत बड़ा त्योहार हुआ और सबको खूब सारा शीरा दही खिलाया गया. And even the dogs got some. कुत्तों को भी मिला खाने को. So even every year they have this festival. It's going on even now. हर साल ये त्योहार यहाँ पे बनाया जाता है, अभी भी, आज भी. You come here in the month of April, May, when the Shiradahi festival takes place. You see the whole street is full of people, and everywhere they're giving away Shiradahi. तो आप लगभग मार्च अप्रैल के समय जब शीरा दही का त्योहार होता है उस समय यहाँ पे आइए, देखिएगा उस समय पूरा गलियां जो है वो लोगों से भरा होता है और सबको ये शीरा दही बांट रहा होता है. Actually, they don't give away so much Shiradahi. They give Shira, but they don't give Dahi. कह रहे कि बहुत ज्यादा चीड़ा दही तो नहीं देते, बस चीड़ा ज्यादा देते हैं, दही नहीं देते. They'll give you some gur, कुछ गुड़ दे देते हैं साथ में आजकल, some sugar water. कुछ पानी, चीनी वाला पानी. But it's very nice festival. There's a lot of kirtan groups everywhere. People are chanting, people are preaching. तो लेकिन बहुत सुंदर त्योहार होता है, बहुत सारे संकीर्तन के अलग अलग ग्रुप बने होते हैं, लोग कीर्तन कर रहे होते हैं, प्रचार कर रहे होते हैं. It's a big festival. People, all the kirtan parties come from far and wide. They like to be here for this festival. तो एक बहुत बड़ा त्योहार होता है, दूर दूर से कीर्तन की मंडलियां जो है यहाँ पर आना चाहती हैं और एक बहुत सुंदर त्योहार होता है. So Raghunath made all kinds of arrangements to please Lord Nityananda. तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने बहुत तरह तरह का व्यवस्था किया नित्यानंद प्रभु को प्रसन्न करने के लिए. And he gave gold coins for his Lord Nityananda's secretary to pay for the expenses for Lord Nityananda and his party.
तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु के जो सचिव थे उनको सोने की मुद्राएं दी नित्यानंद प्रभु के खर्च के लिए। And then Raghunath came to Lord Nityananda and he begged Lord Nityananda, please bless me that soon I can get freed from material life. और फिर रघुनाथ दास गोस्वामी ने आकर के नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद मांगा कि हे नित्यानंद प्रभु मुझे कृपा कीजिए कि मैं इस भौतिक बंधन जीवन से जल्दी मुक्त हो जाऊं। So Lord Nityananda placed his lotus feet on the head of Raghunath Das and said, yes, very soon you should get freed from material life. तो भगवान नित्यानंद प्रभु ने श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के सिर पर अपना चरण को रखा और बोला कि हाँ बहुत जल्दी आप इस भौतिक बंधन से छूट जाओगे। So Raghunath Das was feeling very good. He went home. He didn't tell anybody what happened. रघुनाथ दास गोस्वामी बड़े खुश महसूस कर रहे थे। वो घर गए, घर जाके उन्होंने किसी को बताया नहीं कि क्या हुआ था। But after a short time, it happened one morning that the pujari, the priest in their family, did not come to do the arti. और एक दिन कुछ समय बाद ही एक दिन ऐसा हुआ क्योंकि घर में जो रोज पुजारी आते थे पूजा करने वो आए नहीं। So they said, what's happened? Where's the pujari? He's supposed to come and do the arti. तो उन्होंने कहा कि कहाँ गए पुजारी, आज आए नहीं, उसको आना था पुजारी को आरती करने के लिए। So Lord Raghunath said, I will go and look for him. तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने बोला मैं जाता हूँ थोड़ा ढूंढने पुजारी को। And it was early in the morning. और वो काफी सुबह था, भोर का समय। So Raghunath went out, and he got out of the house, and he thought, now is my chance. रघुनाथ दास गोस्वामी सुबह के समय निकले थे और जब वो घर से बाहर निकले तो उन्होंने सोचा कि अब ये मेरा मौका है। He was supposed to go and find the pujari. वो पुजारी को ढूंढने निकले थे। But instead, he wanted to go to Puri to be with Chaitanya Mahaprabhu. लेकिन वास्तविकता में तो वो वहाँ पुरी जाना चाहते थे और चैतन्य महाप्रभु से भेंट करना चाहते थे। So usually he would go on the main road, but this time he took all the back roads. He took all the roads nobody would ever go on. तो साधारणतः रघुनाथ दास गोस्वामी मेन रोड कैसे चला करते थे, लेकिन आज वो मेन रोड की अपेक्षा ऐसे पीछे के रास्तों से और गुप्त रास्तों से जा रहे थे जहाँ पर वो कभी नहीं जाते थे। So after some time the family thought, what's happened to Raghunath? Why is he not come back yet? He was supposed to bring the pujari. Where's he gone? तो कुछ समय बाद जब परिवार वालों ने देखा कि रघुनाथ दास गोस्वामी आए नहीं तो वो चिंतन करने लगे कि रघुनाथ दास गोस्वामी आए क्यों नहीं, वो तो पुजारी को लेने गए थे। There's no pujari and there's no Raghunath. Where is he gone? पुजारी नहीं आए और रघुनाथ भी नहीं आए, कहाँ गए वो? So then they thought, yeah, he must have run away from home. He's gone away again. He's run away from home. तो फिर उनको समझ आ गया कि ये फिर से घर छोड़ के चले गए। So the hired men, go and find him, bring him back. और उन्होंने लोगों की व्यवस्था की और बोले कि जाओ उनको ढूंढो। And they went and they looked. They couldn't find him anywhere. और लोगों ने उसको बहुत खोजा लेकिन उनको कहीं नहीं मिले। And even they met with Shivananda Sen. Shivananda Sen was going to Puri with a party. They thought he must be with them. But he went there and they asked him, have you seen Raghunath? No, I've never seen him. तो उस समय शिवानंद सेन वो एक बड़ा पार्टी को लेकर के पुरी जा रहे थे, तो वहां पर भी आदमी पहुंचे पता करने और उनसे पूछा शिवानंद सेन से कि आपकी पार्टी में तो नहीं आए रघुनाथ दास गोस्वामी। तो शिवानंद सेन ने बोला नहीं मैंने तो देखा नहीं कभी उनको। So in this way Raghunath made his way walking to Jagannath Puri. तो इस तरह से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने पहुंचे जगन्नाथपुरी। And when he got to Puri, then he was brought to Chaitanya Mahaprabhu. और जब वो पुरी पहुंचे तो फिर उनको चैतन्य महाप्रभु के सामने लाया गया। Now previously Mahaprabhu had told him, go home, behave like a normal person. तो पिछली बार चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला था कि घर जाइए और एक साधारण व्यक्ति की तरह रहिए। But this time Mahaprabhu told him, you are very lucky. लेकिन इस बार चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। You were like an animal who had fallen into the well. आप एक पशु के समान थे जो कि एक कुएं में गिर गए थे। Usually the animal falls in the well, can
never get out of the well. साधारणतः जब एक पशु एक कुएं में गिर जाता है तो कभी बाहर नहीं निकल पाता है। So you were like worse than that. You were in a hole. You'd fallen in a hole where people passed through. You were in that hole. तो आप इस तरह के गड्ढे में थे जहाँ पर लोग मल त्यागते हैं। Somehow you have gotten out. You're very lucky. किसी प्रकार से अब आप बाहर आ गए हो, आप बहुत सौभाग्यशाली हो। So now you have to be very careful. अब आपको बहुत सावधान होना पड़ेगा। Be very strict and control your mind and senses. तो आपको बहुत गंभीर होना पड़ेगा, अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करना पड़ेगा। And Lord Chaitanya gave instructions to Raghunath. He told him, never eat opulent food. तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को निर्देश दिया कि कभी भी बहुत ज्यादा राजसी भोजन ना खाइए। And don't dress in opulent clothing. और आपका जो वस्त्र भी जो है वो ज्यादा महंगे नहीं होने चाहिए। And never hear the talks of the common people. और जन साधारण लोगों की चर्चा में नहीं पढ़ना, कभी सुनना नहीं। But always chant the holy names of the Lord and in your mind worship Radha and Krishna. और हमेशा जो है श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा का पालन करना और मन में राधा कृष्ण का स्मरण करना। So it said Raghunath was a very strict devotee. और ऐसा बताया जाता है कि रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत गंभीर भक्त थे। He would follow the regulative principles just like lines on a stone. तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो है नियमों का इस तरह से पालन करते थे जैसे कि मान लो पत्थर पर लकीर। He was very strict in all the practice of the regulative principles. तो वो बहुत ज्यादा गंभीर थे सारे तरह के नियमों का पालन करने में। And he lived in Puri with Chaitanya Mahaprabhu, but he never directly approached Chaitanya Mahaprabhu. तो रघुनाथ दास गोस्वामी उस समय पुरी में ही रहते थे और वहीं पे चैतन्य महाप्रभु भी रहते थे, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी ने कभी सीधा चैतन्य महाप्रभु को अप्रोच नहीं किया। When he came there, Lord Chaitanya Mahaprabhu gave him to Swarup Damodar Goswami. और जब वो रघुनाथ दास गोस्वामी पुरी में आए थे तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको स्वरूप दामोदर गोस्वामी को सौंपा था। And if Raghunath wanted anything, he would ask Swarup Damodar Goswami. और अगर रघुनाथ दास गोस्वामी को कुछ चाहिए होता था तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी से पूछते थे। And if Swarup Damodar didn't know, he would ask Chaitanya Mahaprabhu. और अगर स्वरूप दामोदर गोस्वामी को उसका उत्तर नहीं पता होता था तो चैतन्य महाप्रभु से पूछते थे। But Raghunath would never go directly to Chaitanya. लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी कभी भी डायरेक्टली चैतन्य महाप्रभु के पास नहीं जाते थे। So Raghunath stayed there in Puri so long as Chaitanya Mahaprabhu was manifesting his pastimes. तो रघुनाथ दास गोस्वामी पुरी में ही रहते थे जब तक श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी प्रकट लीला कर रहे थे। And after Chaitanya Mahaprabhu finished his pastimes, then Raghunath went to Vrindavan. और जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीलाओं को संपूर्ण किया तो रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन को आ गए। And in Vrindavan he was thinking he would jump off Govardhan Hill, commit suicide. और वृंदावन में आके वो सोचते थे कि मैं गोवर्धन पर्वत से जाकर के कूद जाऊंगा और अपना प्राण त्याग दूंगा। But he met Rupa and Sanatan, and Rupa and Sanatan told him, you will never get the mercy of Chaitanya Mahaprabhu by doing that. और फिर जब वो चैतन्य रूप और सनातन गोस्वामी से मिले तो रूप और सनातन गोस्वामी ने उनको बताया कि ऐसा करने से कभी चैतन्य महाप्रभु का कृपा नहीं मिलेगा। So Raghunath stayed there in Vrindavan. He went to Radha Kund and he excavated the beautiful kunds which are there in Radha Kund. तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी वहाँ पर आके वृंदावन में रहने लगे और उन्होंने ये सुंदर जो राधा कुंड का है उसको पता लगाया। Raghunath didn't have any money. He came there with no money. रघुनाथ दास गोस्वामी जी के पास कुछ धन नहीं था, वो बिना किसी धन के वहाँ पे आए थे। But what happened was there was one man, very wealthy man. He was taking all his gold. He was going up to Badrinath to donate all the money to Narayan Rishi. तो उस समय ऐसा घटना हुआ कि एक व्यक्ति, एक बहुत धनी व्यक्ति जिसके पास खूब सारा धन था,
वो बद्रीनाथ जा रहे थे और वहाँ पे नर नारायण ऋषि को अब वहाँ पर ये सारा जो उनका धन था वो दान देने। But on his way there, he had a dream, and in the dream, he got told, he said, "You should take this money to Radhakund and give it to Raghunath. He needs the money." तो वो जब व्यक्ति बद्रीनाथ जा रहे थे दान करने, तो उनको सपना आया और सपने में उनको ये बताया गया कि आप वहाँ बद्रीनाथ जाने की बजाय राधा कुंड में जाइए जहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी हैं और जिनको इस धन की जरूरत है। So the man came all the way down and went to Radhakund. He asked, "Where is Raghunath? Who is Raghunath?" He found Raghunath and he gave him all the money. तो वो जो व्यक्ति थे वो बद्रीनाथ की बजाय राधा कुंड आए और वहाँ जाकर उन्होंने पूछा कि रघुनाथ दास गोस्वामी कौन है, और जब उनको मिल गए रघुनाथ दास गोस्वामी तो उनको सारा धन उनको दान दे दिया। Before that, it was only rice field was there in Radhakund. उससे पहले केवल चावल के खेत थे वहाँ पर राधा कुंड में। Chaitanya Mahaprabhu went into the rice field and took his bath. और श्री चैतन्य महाप्रभु उस समय जब स्नान किए राधा कुंड में तो उस समय केवल चावलों के खेत थे वहाँ पर। And he told the devotees, "This is Radhakund." और उन भक्तों को बताया कि ये राधा कुंड है। So Raghunath Das was staying there and he was thinking how to make a nice place for the Lord's pastimes. तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी वहाँ पर रहते थे और उन्होंने विचार किया कि भगवान की लीला स्थली को कैसे अच्छे से विकसित किया जाए। So Krishna arranged. He sent the man to give all the money. तो भगवान ने ऐसा व्यवस्था किया और उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को भेजा जिसने सारा धन दिया ये व्यवस्था के लिए। So Raghunath lived there to a very ripe old age in Radhakund. तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी काफी वृद्ध जब हो गए थे तब तक वो वहाँ पे राधा कुंड में रहे। He never went home again. वो दोबारा घर वापस कभी नहीं गए। But he went home back to Godhead. लेकिन वो घर गए भगवत धाम को वापस लौटे। Back to his real home. अपने असली घर वापस लौटे। Right? Not this temporary place of birth and death. ये जन्म और मृत्यु का जो अस्थायी जो स्थान है उस जगत में नहीं। So we should understand from this pastime that it's very important that you don't go to Krishna directly, but you go to the spiritual teacher. तो इस लीला से हम ये समझते हैं कि हम भगवान को सीधे भगवान को अप्रोच नहीं करना चाहिए, हमें आध्यात्मिक गुरु का शरण लेकर भगवान के पास जाना चाहिए। Lord Nityananda is not different from Lord Balarama. भगवान नित्यानंद जो है वो भगवान बलराम जी से अभिन्न है। Brajendra Nandana says Sachi Sutta Haila He Balaram Hailo Nitai. So Lord Balaram comes in Chaitanya Mahaprabhu's pastimes as Nityananda. तो भगवान बलराम जी जो है वो श्री चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं में नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं। And Lord Balaram is he's the guru, he's the Adi Guru. और भगवान बलराम जो है वो आदि गुरु हैं। So Lord Nityananda is also Adi Guru. भगवान नित्यानंद भी इसलिए आदि गुरु हैं। So Raghunath, when he went to Lord Chaitanya sent him home. जब रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पास गए सीधा तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको घर भेज दिया। But when he went to Lord Nityananda and when he served Lord Nityananda, then he got the blessings of Lord Nityananda. लेकिन जब वो इसके अपेक्षा जब नित्यानंद प्रभु के पास गए और नित्यानंद प्रभु का आशीर्वाद लिया तब उनको चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार। We say by the mercy of the spiritual master, one gets the mercy of Krishna. तो हम ये जानते हैं कि जो गुरु की कृपा से हमें कृष्ण कृपा मिलती है। So Lord Nityananda gave the mercy to Raghunath Das, and Raghunath Das was able to go on and get the shelter at the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu. तो श्री नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी जी को कृपा किया और उनकी कृपा के कारण वो चैतन्य महाप्रभु के पास गए और महाप्रभु ने उनको स्वीकार किया। So this is a very special holy place. तो ये बहुत विशेष दिव्य स्थान है। We acquired this property only in recent years. हमने इस्कॉन के भक्तों ने ये जो
स्थान है, इसको कुछ समय पहले ही इसको हमने लिया है। This property was purchased by His Holiness Bhakti Vighna Swami Maharaj. तो ये जो मंदिर है, ये स्थान, इसका सारा व्यवस्था किया श्रीमद भक्ति विघ्न स्वामी महाराज ने। The other properties like Raghava Pandit's place, they're in the care of people who are Apa Sampradaya. लेकिन जो दूसरा स्थान है जहाँ पे जाएंगे अभी हम, रघुनाथ दास जी का जो स्थान है, वो अभी कुछ अपसंप्रदाय के लोगों के हाथ में है। They're not in our line. तो वो हमारे प्रणाली में नहीं। But they've got this property. They're there in Raghava Pandit's house. लेकिन उनके पास वो संपत्ति उनके पास है, वो रघुनाथ जो राघव पंडित जी के घर पे है। And then you go there to the tree at the bank of the Ganga, where Raghunath got the mercy of Lord Nityananda. There are so many other pandas there. और आप वहाँ पे जाओगे जहाँ जो पेड़ है, जहाँ पर नित्यानंद प्रभु मिले थे रघुनाथ दास गोस्वामी को, वहाँ पे और कई तरह के पंडे लोग वहाँ पे देखेंगे आपको। So you have to be careful. आपको सावधान रहना पड़ेगा। So Prabhupada came here. Actually, I came here. I remember I was in Calcutta in 1970s. At one time, one man wanted to donate land here in PANI HATTI. तो महाराज कह रहे हैं कि मुझे याद आता है कि श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे आए, और महाराज कह रहे हैं कि मुझे याद आता है कि 1970 के उस समय महाराज यहाँ पे आए, और उस समय एक व्यक्ति था जो यहाँ पर जमीन दान देना चाहता था। So Prabhupada came out here one day. It was winter time. It was a cold day, but Prabhupada came out. He wanted to see, and he talked to the man. There was some talking, but it didn't happen. You know, many times people would come and offer. They would talk about it, but it wouldn't happen. It wouldn't fructify. तो उस समय काफी सर्दी का दिन था, और श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर आए, उस व्यक्ति से मिले, और उस व्यक्ति से काफी चर्चा भी हुआ, लेकिन वो बात जो है पूरी बनी नहीं। कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं और फिर वो आगे बात बढ़ नहीं पाती है। But Prabhupada liked the idea that we should have a temple here. We should have a place here in PANI HATTI. लेकिन श्रील प्रभुपाद जी को ये विचार बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर पानी हाटी में हमारा कोई जगह होना चाहिए, एक मंदिर होना चाहिए। PANI HATTI is mentioned there in Chaitanya Bhagavad and in Chaitanya Charitamrita. It's very much connected with all the pastimes of Chaitanya and Nityananda. तो ये जो पानी हाटी स्थान है, इसका नाम चैतन्य चरितामृता और चैतन्य भागवत में दिया है, और ये चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं की एक बहुत विशेष स्थली है। So we are here. We want to get the mercy. We also want the mercy of Lord Nityananda. तो ये वो स्थान है जहाँ पर हमें कृपा मिल सकता है। हम सबको भी नित्यानंद प्रभु की कृपा चाहिए। We also want to go back home, back to Godhead. तो हम भी भगवान के धाम वापस जाना चाहते हैं। Right? Who wants to go back home, back to Godhead? कौन जाना चाहता है भगवत धाम? Lord Nityananda, He can help us. भगवान नित्यानंद प्रभु हमें मदद कर सकते हैं। Right? We're approaching Srila Prabhupada to go to Lord Nityananda. तो हम श्रीला प्रभुपाद जी का शरण लेते हैं नित्यानंद प्रभु का कृपा प्राप्त करने के लिए। Lord Nityananda is the ocean of mercy. He delivered the most fallen souls. नित्यानंद प्रभु जो है वो कृपा के समुद्र हैं, और उन्होंने बहुत सारे पतित जीवों पे उद्धार किया है। It was Lord Nityananda who was merciful to Jagai and Madhai. तो वो नित्यानंद प्रभु थे जो कि जगाई और मधाई पे जिन्होंने कृपा किया। So this is one place where Lord Nityananda was giving mercy. तो ये वो एक स्थान है जहाँ पर नित्यानंद प्रभु अपना कृपा बांट रहे थे। And because of the mercy, Raghunath Das was able to get free from his most entangling, very entangling material life. और उनकी कृपा से यहाँ पर श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी को जो बहुत जकड़ के रखने वाला भौतिक जीवन था, उससे मुक्ति मिला। You know, you have a lot of wealth, very difficult to detach. आप जानते हैं कि अगर बहुत सारा आपके पास धन होगा तो बहुत मुश्किल है उससे निरासक्त होना।
And if the wife is very pleasing, then it's also not easy to leave. और अगर आपकी जो पत्नी है वो भी बहुत अच्छी है तो भी उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होगा. But Raghunath did it. He left everything to go to join Chaitanya Mahaprabhu. लेकिन श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने ऐसा किया. उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया श्री चैतन्य महाप्रभु का शरण ग्रहण करने के लिए. हरी हरी. Maharaj, that's a book about Pani Hatti. Okay. Last time you got a copy. Yeah, last time you got a copy. Okay. The Pani Hatti is also a dam. I was talking about the dam, right? Mayapur dam, Pani Hatti also dam. तो महाराज बता रहे कि पानी हाटी ये जो स्थान है ये भी धाम है. महाराज कह रहे मैं धाम के बारे में बता रहा था तो पानी हाटी भी धाम है. Means the place where the Lord always resides. यानी कि वो स्थान जहाँ पर भगवान हमेशा नित्य रूप से निवास करते हैं. So on the bottom, the place where Lord Chaitanya is always present. और यहाँ पे इस किताब पे लिखा हुआ है ये स्थान जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु हमेशा रहते हैं. So it's a very special place. ये बहुत विशेष स्थान है. There were only certain places where Lord Chaitanya would manifest. तो वो बहुत ही कुछ ही स्थान थे, कम ही स्थान थे जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु प्रकट लीला करते हैं. Right? There was Shakti Avesha. Sometimes Lord Chaitanya would empower people to act on his behalf. तो कुछ लोग ऐसे थे जो शक्त्यावेश अवतार थे जो नित्यानंद प्रभु जिनको शक्ति प्रदान करते थे अपने तरफ से. But this is Avirbhav. In his Avirbhav form, he would manifest. He could, from unmanifest, he would manifest. लेकिन यहाँ पर जो नित्यानंद प्रभु हैं वो अपने आविर्भाव तरीके से यानी कि अपने छुपे हुए रूप से वो प्रकट होते हैं. So we can Maharaj, feel. Maharaj composed a special words for this book. It is composed by Bhakti Vighna. तो श्री श्रीमद भक्ति विघ्न स्वामी गुरु महाराज ने इस पुस्तक के लिए विशेष श्लोक की रचना की थी. अत्यंत प्रसिद्ध एक पानी घाटी ग्राम राघव गौर भगवान रघुनाथ दास गोस्वामी उद्धारे रतरे दंड महोत्सव लीला नित्यानंद करे. यानी कि ये जो स्थान है पानी घाटी ये बहुत बहुत प्रसिद्ध है. इस्कॉन के जितने मंदिर है सब जगह जन्माष्टमी होती है. कोई नहीं बोलता मथुरा जन्माष्टमी, सब लोग बोलते हैं कृष्ण जन्माष्टमी. हर मंदिर में गौर पूर्णिमा होती है. कोई नहीं बोलता मायापुर गौर पूर्णिमा, सब लोग बोलते हैं गौर पूर्णिमा. कई मंदिरों में रथ यात्रा होती है. जगन्नाथ रथ यात्रा कहते हैं. जगन्नाथ पूरी रथ यात्रा नहीं होती. हर मंदिर में चिड़ादेवी महोत्सव होता है. सब लोग क्या बोलते हैं पानी हाटी फेस्टिवल. तो ये पानी हाटी स्थान बहुत बहुत प्रसिद्ध है. क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि राघव पंडित के घर में महाप्रभु का स्वयं निवास है, नित्य निवास है. और रघुनाथ दास गोस्वामी का उद्धार करने के लिए नित्यानंद प्रभु ने स्वयं लीला की थी. जब ये मंदिर मिला था तो गुरु महाराज ने बताया कि इसी स्थान से रघुनाथ ने प्रणाम किया होगा, तभी जाकर के इसको हमको स्थान मिला. और जयप्रकाश महाराज आए थे पिछले वर्ष, तो उन्होंने बताया कि इस्कॉन में जो शालिग्राम पूजा है, जो पहले शालिग्राम गए थे, शायद महाराज भी उस समय आए होंगे, पहले शालिग्राम पानी हाटी के ब्राह्मण ने प्रभुपाद जी को दिए थे. उनकी पूजा अभी भी इस्कॉन मायापुर में होती है. इसलिए बहुत बहुत विशेष स्थान है. और आप सबका स्वागत है, आते रहिए. ये पुस्तक है, महाराज जी ने स्वयं बताया है. ये पुस्तक बंगला भाषा में भी है, अंग्रेजी में भी है, और अगली बार जब आप लोग आएंगे तो हिंदी में भी मिलेगी. बहुत बहुत धन्यवाद. श्री श्रीमद भक्ति विघ्न विनाशा नरसिंह स्वामी महाराज की हमारे मंदिर की ओर से महाराज जी के लिए एक विशेष छोटा सा टोकन है, एक छोटा सा गिफ्ट है. Small gift for you. Very good mirror. So whenever you do tilak, you remember this symbol and bless us. Pani Hatti. आओ करो आराम. वैष्णव सेवा धाम.
Come and take your rest, take rest. संभाल के रखना है ये Hare Krishna. So first of all, so we want to specially thank Maharaj for taking us to beautiful Leela of Sri Nityanand Prabhu and Raghunath Das Goswami by loudly chanting Bhakti Vighna Vinasha Narsimha Swami Maharaj ki Srila Prabhupada ki श्री पानी हाटी धाम की प्रभु जी बता रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है आपको याद रखना कि अभी जब हम राघव पंडित जी के घर पे जाएंगे तो कोई भी भक्त वहाँ पे फोटो ना ले, बिल्कुल अपने मोबाइल को भी बाहर मत निकालिएगा, वो लोग बहुत गुस्सा होते आते हैं और फिर काफी आपको डांट पड़ सकता है। सो इसलिए सावधान रहिए। मन में रखिएगा, आंखों से देखिएगा और मन में रख लीजिएगा। फोटो मत खींचिएगा, नहीं तो चिल्लाते हम लोग। यहाँ पे जो करना कर सकते तो वहाँ पे फोटोग्राफ मत लीजिए। अभी कुछ बहुत विशेष है, हमारे भक्तों ने यहाँ पे कुछ अभी रास्ते में आते आते कुछ एक छोटा सा ड्रामा प्रिपेयर किया है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा डिवोटीज को काइंडली क्विकली प्रेजेंट ऑन द पास्ट टाइम ऑफ नित्यानंद प्रभु एंड रघुनाथ दास गोस्वामी। ये पुस्तक प्रभु जी जो दिखा रहे हैं ये बाहर यहाँ स्टॉल पर है, उपलब्ध है। जो भक्त इसको लेना चाहे, ये बंगाली और इंग्लिश में है और आप ले सकते हैं और हिंदी में अगले साल मिलेगा। हरे कृष्ण। अब यहाँ तस्वीर तो उसको बोलना पड़ेगा, यहाँ से चप्पल गिर के जाए, वहाँ जाके 10 मिनट फोटो में बैठ जाए और ऑटो में बैठ जाए। हरे कृष्णा। एक और सूचना है, जब तक भक्त डिवोटीज कृपया ध्यान दें, यहाँ से हम अपना सारा जो भी सामान चप्पल वगैरह जो आप लाए हैं, आपका कोई बैग वो साथ लेके ही चलेंगे। हम यहाँ से दर्शन करते हुए रघुनाथ दास जी के घर जाएंगे, राघव पंडित जी के घर जाएंगे और वहीं से हम लोग महोत्सव तला भी जाएंगे, जहाँ पर ये नित्यानंद प्रभु ने कृपा दिया था, चिड़ादही त्योहार हुआ था, और वहीं से सीधा हम बस में चले जाएंगे। और आप लोग जल्दी करने के लिए छोटा टोटो करके जल्दी जल्दी अपनी बसेस में पहुंचकर और 10 रुपए पर हेड ऑटो को देना है, ज्यादा मत देना। प्रभु जी बोल रहे रेट खराब हो जाएगा अगर आप लोग ज्यादा दे दोगे और भक्तों को दिक्कत हो जाएगा। तो आप ऑटो लेके बस में बैठिए और फिर मायापुर धाम आपका वेट कर रहा है। प्रभु जी कह रहे हैं यहाँ पे सबको आशीर्वाद है। आप लोग थोड़ा आगे आ जाओ ना भैया, थोड़ा सा इधर नहीं, यहाँ तक खाली जगह खाली इधर आ, यहाँ तक रहिए, यहाँ पीछे इधर आगे। हरे कृष्णा आवाज है। हरे कृष्णा। तो हम एक ड्रामा रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, लाइक भक्ति विघ्ना नरसिंह स्वामी महाराज के ब्लेसिंग से प्लीज महाराज ब्लेस अस। हम लोग ड्रामा करेंगे। Hare Krishna. So we are just going to represent a drama, which is basically based on Chiradev festival. The Leelas are going on between the Raghunath Das Goswami and Nityanand Prabhu. So my role is Raghunath Das Goswami, and he is Pradeep Prabhu, and his role is Nityanand Prabhu, and he is the parcel of Nityanand Prabhu. We just going to start drama. Please Maharaj bless us. Jai Shri Krishna Chaitanya. जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय श्री कृष्ण चैतन्य। प्रेमाधना बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन,
महाप्रभु कब मैं आपको कब अपने दास बनाओगे महाप्रभु? महाप्रभु मैं आपके कब दास बन पाऊंगा? कब इस गृहस्थ आश्रम से निकल पाऊंगा महाप्रभु? कब मुझे आप वेतन रूपी कृपा प्रदान करेंगे और धन और प्रेम धन प्रदान करेंगे महाप्रभु? कब प्रदान करेंगे? रघुनाथ नित्यानंद प्रभु गंगा तत्व में 5 साल लीला कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु दया करो मोरा निताई, दया करो मोरे, दया करो मोरे रघुनाथ प्रेम के आपको प्रणाम कर रहे हैं। आज्ञाने गतिला निताई साधु लोका बोले। नित्यानंद प्रभु मुझे आशीर्वाद दो नित्यानंद प्रभु कि मैं गृहस्थ जीवन से निकल पाऊं और आपका सेवा कर पाऊं नित्यानंद प्रभु। देखी शबगाना चोर दिली दर्शन, देखी शबगाना चोर दिली दर्शन, आओ आज तो तुम बिल्कुल उस चोर की तरह जो हमेशा छुपने का प्रयास करता है रघुनाथ। तुम बिल्कुल एक चोर की तरह हो, क्योंकि तुमने श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा को चोरी करने का प्रयास किया बिना मेरी कृपा। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा बिना मेरी कृपा के नहीं मिल सकती रघुनाथ। और इसीलिए मैं आज तुम्हें दंड करूंगा, इसीलिए आज मैं तुम्हें दंडित करूंगा और दंड के स्वरूप में तुम्हें मेरे सारे भक्त गणों को दही चीड़ा का भोज कराना होगा। मैं अभी अपनी सर्वेंट को बुलाता हूँ और दही चीड़ा का भोज कराता हूँ। प्रभु जी इधर आओ। तो जितने भी साधु हैं उनको दही चीड़ा खिलाइए। आप भी खाइए। नित्यानंद प्रभु ये आपके लिए दही चीड़ा कृपया करके ग्रहण करो। नित्यानंद प्रभु ग्रहण कीजिए। हाँ रघुनाथ, हाँ ये क्या नित्यानंद प्रभु मुझे अपना ये आपका ये मेरे हरि ओम। थैंक यू वेरी मच। तो इन भक्तों को हम विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं। चलते चलते इन्होंने हमें यहाँ तक एक ड्रामा प्रिपेयर किया। श्रीधर नारायण प्रभु, प्रतीक प्रभु और आदित्य प्रभु। तो इन सब के लिए एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई चिरादरी होगा 2 रुपया किसका जो समझ दान करना चाहते हैं तो देंगे तो हम चिरादरी करेंगे। यहाँ जो चिरादरी होता है इसका में कोई गेट बंद नहीं होता है जैसे जन्माष्टमी में गौर पूर्णिमा, क्योंकि यहाँ 1 मिनट खुला रहेगा तो 10 मिनट बंद रहेगा। क्यों? यहाँ लोग इतना प्रवेश करता है जो मर जाने वाला संभव होता है, तो हम थोड़ा खाली करता है फिर घुस जाता है। तो इसका पिछले साल का पहले साल 12 भक्त तो सीधा ऊपर चला गया। इतना क्राउड होता है और क्राउड ज्यादा स्क्वायर में होता है। तो आप लोग लास्ट ईयर का उसका पहले साल तो आप लोग चिड़ा दधी का प्रभु जी सिर्फ ये 40 लोग ही चिड़ा दधी खाया है, हम लोग को कुछ नहीं मिला। इन्होंने बोला सबको खिलाना है, रघुनाथ का पैसा भी खरीद करने की वजह पे। तो जो चिड़ा दधी खाना चाहता है, कौन आना चाहता है चिड़ा दधी में? बोल नहीं बोलना, कौन देख रहा है फिर आओगे नहीं तो झूठा हो जाएगा। हाँ, आप लोग भी रघुनाथ जैसे सेवा करना चाहता है
2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, तो चिड़ा ददी का नाम में हमारा ऑफिस में जमा होगा, प्रभु जी के हाथ में दे देना। और चिड़ा ददी तो हम लोग बांटेंगे, हमारे यहाँ 35,000 आदमी तक खा सकता है। और चिड़ा ददी हाथ में नहीं बांधता है भाई, सीधा बात, वो सब मशीन में बांधता है, नहीं हाथ आदमी को भी हॉस्पिटल भेजना पड़ता है, जूस मशीन में निकालता है, क्योंकि लाखों आदमी आता है, टोटल 7, 8, 9 लाख आदमी आता है, इसके में 35,000 तक प्रवेश कर सकता है, उसके ऊपर नहीं कर सकता है। नहीं हम लोग यहाँ कुछ दुर्घटना हो सकता है, गुजर ना जाए। हमारा 3 भक्त वो पेड़ है ना हमारा इस यहाँ का गेस्ट हाउस है ना, उसके ऊपर 3 भक्त वहीं गुजर गया। तो इसलिए हम लोग 5 दिन प्रोग्राम होता है, 1 दिन नहीं, 5 डेज। कितना दिन? चिड़ा तो 1 दिन होता है, पर टोटल 5 दिन प्रोग्राम होता है। एक दिन पुष्प फेस्टिवल, एक दिन गंगा सफारी। आप लोगों को लेके एक बार हम गंगा में, हमारे पास बहुत बड़ा बोट है, 250, 300, 500, 700 तक जा सकता है। यहाँ से हम लोग 1 घंटा 1.5 घंटा घूम सकता है, हाथ श्री पर दर्शन कर सकता है। कौन करना नहीं चाहता है, हाथ उठाइए। अच्छा करना चाहता है, हाथ उठाओ। कौन चाहता है? इस जन्म में, आज ही जन्म में तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोई किसी ने दान करना चाहता है चिड़ा दही के लिए, 2 रुपया, 5 रुपया नहीं भी चाहे तो आशीर्वाद भगवान से प्रार्थना करें। इस बार भी हमारा प्रोग्राम बहुत जोरदार हो जाए और बहुत अच्छा से हो जाए। निताई गौर प्रेमानंद। प्रभु जी किसको किसको खिलाया चिड़ा दही? देखा नहीं, लोग खिलाया ना सर, देखा नहीं क्या आप लोग चिड़ा दही? क्या रे भाई इतना अच्छा ड्रामा किया है, खिलाया कि नहीं खिलाया? तो आपको मिल गया, आपको भी मिल जाएगा। 2 बार जब आएंगे ना, याद दिलाना, चिड़ा दही का एक आइटम रखते हैं, तो चिड़ा दही हम भोग लगाएंगे और आपको खिलाएंगे, पक्का? पैसा कौन देगा? उनको पैसा लेंगे हम। Hare Krishna. So thank you, Prabhuji. So we want to thank devotees here in this temple for arranging very nice program और यहाँ पे बहुत सुंदर व्यवस्था करते हैं। So we will now move on. तो महाराज के साथ में हम लोग अभी जाएंगे, वो स्थान का दर्शन करेंगे जहाँ नित्यानंद प्रभु ने तो पहले हम राघव भवन जाएंगे, जो राघव पंडित और दमयंती जहाँ पे महाप्रभु के लिए पूजन करते हैं, उनका भवन है। और फिर यहाँ पर आएंगे जहाँ नित्यानंद प्रभु ने, तो वहाँ पे हम अनाउंसमेंट नहीं कर पाएंगे, तो पहले वहाँ राघव जी के घर पे, और फिर नित्यानंद प्रभु ने जहाँ पे रघुनाथ दास गोस्वामी जी को ये लीला किया था, वो पेड़ है, वो आप दर्शन करके वहाँ से सीधा ऑटो लेके हम बसेस मेन रोड पे जाएंगे और अपनी अपनी बस में वापस आएंगे। राघव भवन में ध्यान रखिए, राघव पंडित का पिताजी देवी